हाँ जी जी, गुरु प्यारी संगत जी, 73 साल बाद गुरु घर का दरवाज़ा जिहड़ा असल दरवाज़ा है, इतिहासिक दरवाज़ा है, वो खोलिया जा रहा है, जिहड़ा कि बहुत अरसे तो बंद सी, क्योंकि मेन दरवाज़ा जिहड़ा कार सेवा वास्ते असीं खोल रहे हैं, बहुत औख होई है, क्योंकि मिट्टी जाब जा और बहुत ज़्यादा सारा कुछ पै पै के रस्ता जिहड़ा सी बिल्कुल बंद होया सी। रणजीत निगारा दी कार सेवा टीम जिहड़ी है वो पहुँच चुकी है, और आपां जिहड़ी है कार सेवा जिहड़ी है सफाई दी कार सेवा जिहड़ी है पहले मरहले दे विच शुरू कीती है। ते ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਪੈਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ 4 ਮੁਹੱਲੇ ਸਨ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ कश्मीरी लकड़ नूं चीरन वास्ते। तो इस वास्ते लकड़ का बहुत ही खूबसूरत और बड़ा प्यारा काम होया है, जिस तरह कि टहल सेवा करवाइयां ने और बाकी चीज़ां ने, इन्हों आपां कढ़ रहे हैं, प्रोमिनेंट कर रहे हैं, ताकि असल इतिहास जिहड़ा वो सामने आ जाए। ठीक है जी, ये मेन सोर्स सी जिहदे उत्ते भाई करम सिंह जी का नाम लिखिया होया सी। ये ब्लॉक जिहड़ा सी वो पहला ब्लॉक सी। ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਟੂ ਸਕਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਦਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਲਮ ਸਿਟੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 44 ਜਾਂ 45 ਜਾਂ 43 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸੋ ਦੀਆਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ 2 ਰੂਮਸ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ 2 ਆਰਕਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰੂਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਰੁਬਾਬ ਫਾਤਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। रुबाब, क्या हाल है आपका? खैरियत से आप ठीक है? करने जा रही हैं आप बेसिकली अभी इट्स अ वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द गुरुद्वारा। हम मतलब 2 हफ्ते पहले ही हमने विज़िट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ बेसिक क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब फ़र्शों पे 1-1 फुट टाइप मिट्टी जमा हुई हुई है, और वी आर गोइंग टू क्लीन द गुरुद्वारा ताकि हम लोग उसको फिर डॉक्यूमेंट कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन, व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन, तो इंच बाय इंच की डॉक्यूमेंटेशन होएगी कि व्हाट द होल गुरुद्वारा लुक्स लाइक अभी करंट सिचुएशन में। अब हम गुरुद्वारे के अंदर हैं, जो मेन प्रकाश की जगह है, और ऊपर दर्शन ड्योढ़ी है, और उसके हम आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें काफ़ी हद तक हमें चीज़ें सही हालत में मिल रही हैं। कोई एक डिटेल इस जगह पे कंप्लीट है तो कोई दूसरी उस दीवार पे कंप्लीट है, अगर बाकी जगहों से टूटी हुई है तो। और इसके अलावा द वुड वर्क हियर इज़ अमेजिंग। उस
मतलब जो पुराने टाइम का सारा वुड वर्क था, जिसमें बगैर कील के इनग्रेविंग का सारा काम करते थे, वो सारा वुड वर्क हुआ है। ये पूरी अलमारी जो है, इसमें सिवाय चुकाट के इसकी जिससे दरवाज़ा खुलना है, उसके अलावा कोई कील नहीं आपको नज़र आएगा। यू विल ऑब्जर्व वुडन पीसेस लगाते हैं, वो भी जहाँ ज़रूरी है। इट्स वन पीस कार्विंग, ये सारी की सारी जो है उसके वन पीस कार्विंग। और ये किसी ने वो प्लेट पे लिखा हुआ है कि किसी ने खुद, जो कारपेंटर है उसने खुद बना के यहाँ पे एज डोनेशन दी हुई है। अगर हम आपको ये खोल के दिखा दें तो उसके अंदर भी इट्स प्रॉपरली लाइक वो इनग्रेविंग का प्रॉपर काम हुआ हुआ है, खुल जाएगी। और इसके ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की गुटका साहिब, बेसिकली ये वो जगह है। अब अगर हम थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं तो आपको नज़र आ रहे हैं सारे दरवाज़ों के ऊपर एक ही किस्म की आर्च है। दरवाज़ों खिड़कियों के ऊपर छोटी आर्चेज़ हैं फॉर दिया एंड ऑल, मतलब रोशनी के लिए। इसके ऊपर कलर्ड ग्लास लगा हुआ है सारा, और ये ग्लास बेल्जियम से इम्पोर्टेड है उस टाइम पे, ठीक है। और सारी की सारी लकड़ी जो है इट वाज फ्रॉम कश्मीर, यू वर सेइंग? कश्मीर से है, और इट वाज ऑल डोनेटेड इन डिफरेंट टाइम्स। उस पूरे 3 साल के टाइम पीरियड में ये सारी डोनेट हुई थी। इसके ऊपर मशल रखने की जगह है फॉर लाइट, ये डबल हाइट स्पेस है, ऊपर रोशनदान है। अब इसकी जो सारी छत है वो लकड़ी के बाले, आयरन का पूरा एक बीम, और उसके ऊपर ईंटें लगी हुई हैं छत पे। वो जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मार्बल की। ये प्रकाश की जगह है, इसका दीवान स्थान है। अब ये सारा का सारा जो इसकी एजेस हैं चारों, वो वन मार्बल चिजलिंग है, होल मार्बल पैलेट। इसकी सारी साइड्स जो हैं कहीं पे इनग्रेविंग हुई हुई है, कहीं पे चिजलिंग हुई हुई है मार्बल से, और इसमें कॉम्बिनेशन है। इसकी चारों साइड्स पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और इसकी एजेस का जो मार्बल है इट इज़ 5 इंच बाय 5 इंच कार्व्ड मार्बल, मतलब इसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं है मार्बल दूसरा। ये ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन चल रहा है जो बाकी गुरुद्वारे में, सारे गुरुद्वारे में मार्बल लगा हुआ है इन ब्लैक एंड वाइट। अच्छा रुबाब, ये कुछ नजर आ रहा है कि 2 प्लेसेस जो हैं, एक अपर हो गया और एक डाउन आ गया है ना, ये जैसे हाँ 1992 का जो यहाँ के लोग मुझे बता रहे थे, हम लोगों को बता रहे जी थे जी कि जो 1992 का फ्लड आया ना, हाँ जी जी उसमें ये बैठा है। हाँ जी, और ये बहुत वाजिया तरीके से बैठा हुआ है। ऊपर की सारी टाइल सेटल है, बिल्कुल नीचे बराबर से सारी की एक तो इस पे वेट भी था ना, आपको ये भी थोड़ा अंडरस्टैंड है। करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा अच्छा इस पे अच्छा, वेट था थोड़ा सा। तो ओके। मेजर पार्ट जो बैठा हुआ है, जो टूट भी गया है, वो ये वाला पार्ट है ना। अब हम्म, मार्बल है, उसका बहुत वेट है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये सेटल हो गया इस तरह से। और आप बाहर जाते हैं तो बाहर 3 जगह पे और सेटलमेंट हुई हुई है, क्योंकि फिर पानी पीछे जाता रहा है विद टाइम। ओके। और इवेंचुअली जब पानी एंड पे जाके ठहरा है, बिफोर दे मेड द बन, तो हम्म, वहाँ पे जहाँ पे ठहरा है वो तीसरी सेटलमेंट है। मतलब 6 लेवल्स में आपको भी नजर आएगा। अच्छा, छतों पे भी बड़ा जबरदस्त किस्म का वो कॉर्नर पे अगर आप देखें तो बड़े फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो ऊपर बड़े बड़े, प्रॉपरली हाँ सारा जी जी लकड़ी का जी। इस गुरुद्वारे में, मतलब मेजरली काम लकड़ी का है। यहाँ इसमें ईंटों का काम है, यहाँ इसमें ईंटों का काम है, यहाँ इसमें लकड़ी का काम है ओके, मेजरली। ये और कुछ देखें जो खूबसूरत जो तरीन लकड़ी का अलमीराज हैं काम है। वो बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो डिजाइन की गई है। हम ये देख भी सकते हैं खोल के, हाँ, अभी तक इंटैक्ट है, ये आप देख लें। बिल्कुल। मतलब दरवाजे भी काम कर रहे हैं काफ़ी दरवाजे भी हद काम तक। कर रहे हैं और बड़ा फ्लो में कर रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ हैं, कोई वो ये नहीं है। इसको अब तो कभी मेरा इसकी नहीं ख्याल है कि किसी ने कभी ग्रीसिंग भी की हो नहीं इसकी। नहीं, इसकी नहीं। इसकी ऑर्नामेंटेशन जो है ना, और बाहर की बिल्डिंग्स की ऑर्नामेंटेशन है वो सेम है। बट व्हेन यू लुक एट दैट पीस, जी जी। और और आप बाहर के ऊपर डोर्स, सारा देखते हैं और बाहर के डोर्स देखते हैं, हाँ ये बहुत यूनिक उनकी कश्मीरी स्टाइल के जो इनसेन, हाँ छज्जा जिसे मतलब कहा जाता है। इनसेन कार्विंग है, डिपेंडिंग बहुत ऑन, ही बारीकी में किया हुआ बहुत काम है बारीक ये, काम जो है। कम देखने में ये मिलता है। एक एक चीज़ इसकी बनी हुई है प्रॉपर्ली। अभी तो खैर हम पहुंचेंगे ऊपर, सफाई वगैरह करेंगे तो हमें और चीज़ें काफ़ी, आप आते रहेंगे, अब हमें जी विद जी जी, बिल्कुल टाइम बिल्कुल। और पता एक लगता और बड़ा रहता है कि बड़ा क्या क्या यूनिक हमने किस्म का डिस्कवर किया है। जो देखेंगे कि वो अर्थ का और उसके बाद हाँ देवते इट्स का जो है वो ब्यूटीफुल, हाँ जी। बहुत डिफरेंट किस्म का, यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक है। काफ़ी हद तक। अब ये जो डिटेल मिसिंग है वो हमें वहाँ पे मिल रही है 2 जगह पे। बिल्कुल जी, तो इसमें दिख रही है। इसमें जो लॉस ऑफ लाइक हिस्ट्री है ना, वो काफ़ी हद तक हम रिकवर कर सकते हैं।
क्योंकि रेफरेंसेस बचे में, बच्चे में है रेफरेंसेस बचे में, ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये अभी हमने खुलवानी है जगह, इस पे 3 ताले लगे हैं, ये मुझे नहीं पता इसका क्या मसला है। कि तो ये गुरुद्वारे के बाहर वाला सहन कह लें या बाहर की जगह है जिस पे जब हम अंदर से बाहर आते हैं, एंड इट वाज फेसिंग टू रिवर, पीछे इसके रिवर था। 2017 में इस पे ये बंद बना है जिसके बाद पानी रुका है, और पानी रुका भी इस तरह है कि पीछे एक मतलब नाला टाइप निकल आया है, विच इज़ वेरी बैड फॉर एग्जैक्टली। हाँ जी, वो गवर्नमेंट से बात हुई है, दे आर लाइक कि हम आपको ये मूव कर देते हैं। गवर्नमेंट इज़ बीइंग वेरी कोऑपरेटिव थ्रू आउट। बड़ा वाइल्ड हुआ है और बड़े वाइल्ड अब इसमें मैं आपको कह रही थी ना कि 3 जगहों पे सेटलमेंट हुई थी है। अच्छा, एक तो अंदर से जब आप बाहर आ रहे हैं ये पूरी स्लोप है, आपको चलते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ पे नीचे बैठ गया, यहाँ पे नीचे बैठ गया फर्श इस पर्टिकुलर पार्ट में जिधर आप खड़े हैं। उसके बाद अब मुझे एक चीज़ लग रही थी कि यहाँ पे स्टेप हो सकता है ये नहीं, लेकिन वो देखिए एंड पे, हाँ, या वहाँ से पता लगता है कि स्टेप नहीं है, है वो पूरा बॉर्डर है, वो बैठ गया। अब ये पूरा का पूरा कम से कम 8 इंच बैठा हुआ है सारी जगह। और तीसरी सेटलमेंट की जगह ये हो गई भी है। अच्छा, जो रिवर का व्यू था, रिवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा देर तक पानी रुका है ना इस पार्ट में। अच्छा, इवन दो फ्लड निकल गया, सारा पानी निकल गया, यहाँ तक पानी आता रहा है। जब बारिशें हुई हैं पानी ओवरफ्लो करके इधर तक आया। 2017 के बाद फिर यहाँ पे पानी नहीं आया। 2017 के बाद ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो ये उस तरह की सिचुएशन है। ये फ्लड लेके गए। जब इस तरह की आपके पास डिटीरिएशन होती है ना, ये फ्लड लेके जाते हैं। पानी लगा है, जमीन बैठी है, और बिल्डिंग उस तरफ इसलिए हो गई, उधर स्ट्रक्चर था ऊपर, वजन नहीं उससे संभाला गया। 2 कॉलम्स टेढ़े हैं, बाकी वो सारे इंटैक्ट हैं। बिल्कुल सही है। सबसे मेजर जो पार्ट है ना डिस्ट्रक्टिव, वो ये वाला है। मतलब दरवाज़ा जो है वो कम से कम 8 इंच तक उसका एंगल चेंज हुआ है। उसमें एक ऑन कार लिखा हुआ है और बहुत वुडवर्क अमेजिंग है, वुडवर्क बहुत खूबसूरत है। मतलब ये आप देख रहे हैं एक एक चीज़ पे नज़र आ रहा है कि टाइम, मेहनत और डेडिकेशन लगी हुई है। वो वुड पे कर्व करना जरा थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर आप देखें 1 पीस है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारा 1 पीस है। दूसरा आप देख रहे हैं नीचे काफ़ी सिंप्लीफाइड है, ऊपर उतना ही हेवीली लाइक कार्व्ड। अच्छा, क्योंकि ये बेस की कश्मीर को जाते हुए तो उसमें फायर प्लेस भी उन्होंने जगह जगह पे बनाए हुए। फायर प्लेस तकरीबन हर कमरे में है। हर कमरे में। हाँ जी। सर्दियों में अगर आप देखिए कि बहुत डेंजरस, मतलब कि इसकी हालत जो है वो हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर भी नहीं करें यहाँ से। हाँ जी, कमरा बिल्कुल अब इसमें से जो चीज़ें हम प्रिजर्व कर सकेंगे वो हम निकाल लेंगे, जो चीज़ें फिर नहीं बच सकेंगी वो हम मतलब प्रॉबली रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है इसमें। हाँ जी साढ़े आर्कीटैक्ट साहबा ने सानू प्लान दसिया कि उन्होंने की ऑब्जर्व किया। तो मैं हुण थोड़ा जिन्ना तुहाडे नाल शेयर करदा चलां कि मैं 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। और ऐसे तरह ही जिस तरह के एक गुरु खंडा तुहानूं नज़र आ रहा है, ऐसे तरह दूसरे पासे भी गुरु खंडा बनया होया सी। सेंटर दे विच एक ओंकार जिहड़ा है वो भी लिखिया होया सी। अगलियां जालियां दे विच भी सेम पोजीशन सी और सेम ही खूबसूरती सी। और यह छत जिहड़ी है इहदे उत्ते खलो के मैं फोटोआं खुद बनाईयां ने, वो तुसीं देखो उत्ते फायर प्लेस जिहड़ा वो नज़र आ रहा है। रूम दे विच आण जाण दा कनैक्टिविटी जिहड़े रूम कह लो तुसीं कनैक्टिड रूम हुंदे ने वो भी मौजूद है। दरवाज़ा उत्ते तुसीं देख सकते हो, खिड़कियां भी एक दूजे दे विच खुलदियां सन। दूसरा इधर आओ तुसीं ते इस पासे भी तुसीं देख सकते हो कि इत्थे भी फायर प्लेस जिहड़ी है उत्ते तक वो नज़र आ रही है। अगले रूम दे विच भी यानी कि 3 रूम्स जिहड़े ने वो तो सामने सामने बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। फिर उस तो बाद जिहड़ियां सीढ़ियां ने वो उत्ते जा रही ने। ठीक है जी, ये इस साइड ते अगर तुसीं आओ तो तुहानूं खूह की सेवा नज़र आती है। खूही जिहड़ी है पानी वाटर सप्लाई जिहड़ी सी वो नज़र आ रही है इत्थे कि खूह दे उत्ते। हाँ जी खूह जिहड़ा वो नज़र आ रहा है। और उस तो बाद तुसीं देखो इत्थे भी बिल्कुल सेवा करवाई जिहड़ी है सेवा भगत ईशर दास
ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖੰਡੇ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੁਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी रूबाब प्लीज जी। ये जब हम नीचे देख रहे थे तो दिस इज़ द लेफ़्ट साइड ऑफ गुरुद्वारा, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जिसका फ्लड की वजह से पूरा कम से कम वो 8 डिग्री तक नीचे गिरा हुआ है लेफ़्ट साइड उसकी। अब जब आप नीचे से देखते हैं कमरों में तो तीनों छतें गिरी हुई हैं, तीनों कमरों की, वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। वो छत किसी हद तक इंटैक्ट है और वो उसमें आपको फायर प्लेस दिख रही है। नहीं, अंदर कमरे में भी फायर प्लेस है, नीचे भी फायर प्लेस थी, ऊपर भी फायर प्लेस है। सो एवरी रूम हैज़ अ फायर प्लेस। अब ये वाला पार्ट वो है जो नीचे कुएं वाला कमरा है और उसके ऊपर की छत बहुत सलामत है। अब ये एक इंडिकेशन है, हाँ जी मुझे आइडिया है, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से ये जगह भी गुरुद्वारे के पास है। कौन सी वाली जगह से? ये जो स्टेप्स हैं, नहीं स्टेप नहीं, ये फॉर्म है ये। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि ये कमरे बहुत छोटे हो गए हैं और दीवार जो है वो मिल नहीं रही किसी। ये दीवार देखें, वो पीछे की तरफ लीन की है और वो दीवार की अटैचमेंट ख़त्म हो गई है फ्रॉम द वॉल। फिर इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो उन्होंने, इस घर वालों ने जो भी यहाँ रहते हैं, खिड़की बंद करने के लिए उधर लकड़ी का लिंटल डाल के ऊपर नीचे से कवर किया हुआ है। सो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि गुरुद्वारे की बहुत ज़्यादा जगह इनक्रोच्ड है, लेफ्ट और राइट साइड पे। राइट साइड तो मैं देखा ही थी स्कूल ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਰੂਬਾਬ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ रूम्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ है वो सेन है जी प्लीज। बेसिकली इसमें जो हमें अभी तक समझ आ रहा है, ये सबसे इंटैक्ट जगह है, काफ़ी इंटैक्ट है। इसके नीचे वाले जो कमरे हैं वो पीछे इनक्रोच्ड हैं स्कूल के वो, और इसका जो मेन एक सबसे लग्जूरियस आप कह सकते हैं कमरा हमें मिला है, विच इज़ मतलब गुड इन डायमेंशंस एज वेल, मतलब बड़ा कमरा है। अच्छा, मुझे अभी भी नहीं नजर
अच्छा बाहर की तरफ है, ठीक है, सही हो गया। उसके अलावा इसमें फायर प्लेस है, और ये सबसे बड़ी फायर प्लेस है और सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंटेड फायर प्लेस है। अभी आपने नीचे भी देखी है, वो शादी बनी हुई है, और बिल्कुल इसमें शादी 4 की है। चुफेरे खिड़कियाँ हैं। हाँ जी। और उसके बाद आप अगर इस तरफ आते हैं, इधर ही जी पहले जी जाएंगे, प्लीज। हाँ जी, आप इस तरफ आते हैं तो ये एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा, और एक खिड़की, एक चीज़ें रखने की जगह है। यहाँ से भी सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं ना नीचे हाँ जी मेन जी, वो एंट्रेंस बंद से। होंगी। हाँ जी। हाँ, अब इस पॉइंट पे, हाँ जी। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे, जी, अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो आपके पास घर कमरे हैं। राइट साइड पे आपके पास डबल हाइटेड कोर्टयार्ड, जो रिसेप्शन है इनकी, एंट्रेंस ऑफ अच्छा, बड़ी गुरुद्वारा। ब्यूटीफुल ये ओपन एयर और फ्रेश एयर के लिए बहुत भी आप कह खूबसूरत लें है। पैशियो जो है। हर जगह खिड़कियाँ हैं, पूरी क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम है, उस खिड़की से इधर नीचे ऊपर, प्रॉपर कोर्टयार्ड है ये छोटा प्रॉपर सा। जो है आर्किटेक्चरल डिजाइन्स के तहत जो है वो पूरी बिल्डिंग को जो है वो वो। तो खूबी ये थी ना पुराने अच्छा, आर्किटेक्चर की। ये एक और यूनिक चीज है जो कलरफुल जो गिलास है उसके अंदर जो है गुरु खंडा जो है कहीं पर भी पाकिस्तान में आपको नहीं मिलता, और जो अच्छा, यहाँ पर सही, मौजूद है विंडो के अंदर स्पेशली जो सही है हो गया। बिल्कुल गोथक आर्च के अंदर जो है सही वो हो गया। ऊपर टॉप में। अच्छा, चलते हैं उस साइड पे और वहां पर भी दिखाते हैं कि सेम रूम जो है उस अच्छा, साइड पे। यहाँ से जो एंट्रेंस है ये गुरुद्वारे के अंदर की है, ओके। जहाँ पे जो मेन हॉल है और जी जो जी, दर्शनी ड्यूटी जिसे दर्शनी आप ड्यूटी दर्शनी जो है वो ड्यूटी। यहाँ से है बेसिकली। अच्छा, ये भी कुछ अच्छा मजबूत आर्किटेक्चर। हाँ जी, उसके बाद अगर आप इस साइड पे आते हैं, इधर से भी एक एंट्रेंस है जी दर्शनी ड्यूटी बिल्कुल की, सेम जो रूम और था सेम, वो बिल्कुल सेम वही जो नहीं आपने उसका बताया। डिफरेंट था डिटेल्स। फॉर्मल थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी हम्म, तकरीबन फाइव प्लेस के ऊपर हाँ जो है जी, थोड़ा सा ट्रायंगल वगैरह जो वो था। प्रॉपर बड़ी वाली फायर प्लेस थी, इसमें 3 खिड़कियाँ हैं, 2 छोटी हैं, एक बड़ी है सामने, और ये निकलता है उस लेफ़्ट साइड पे जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। हम अच्छा। सामने खड़े हुए थे, वी हैड एन इंटरव्यू देयर, हम ये एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सारी छत टूटी हुई है। एक बार ये अच्छा, ये छत किचन दिखा वाली दें। जगह जो है ये यहाँ पर भी किचन है एक छोटा सा। हमें लग रहा था क्योंकि उसमें चूल्हा भी पड़ा हुआ है, छोटा सा बना हुआ है मट्टी का। बिल्कुल मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है। हमें लग रहा था कि वो किचन है, लेकिन अभी जब तक जी जी, पीछे ध्यान जब से तक जरा प्लीज क्लीनिंग इससे नहीं तो। होती हम लोग कुछ नहीं कह सकते। और प्लीज़ उधर बहुत फ्रेजाइल है, ये सारा नीचे गिरा हुआ है। अच्छा, तो ये वही कमरा है जो नीचे कुआं है, जी बिल्कुल हाँ, कुएं वाला जो जिसकी एक कमरा है। छोटी सी छत टूटी हुई है सिर्फ। ओके। वो कुआं भी मेरा एक ख्याल आई बहुत थिंक छोटा वो उस कमरा है तरफ है, जो कि कुआं वो है कन्वर्टेड इधर। है इनटू अ बाथरूम, कुआं वो उसके हम नीचे करवा है, देंगे। उसके नीचे। हाँ, कुएं वाला उसके नीचे है, हाँ ये जी उसके जी। पीछे वाला कमरा है। अच्छा, वो किचन के देखिए कुआं वो पानी का सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है, और हाँ। इधर ही वॉशरूम है, वो जो बाथरूम्स हैं हम्म, उनका भी उन्होंने रखा हुआ है सिस्टम। और ये सिटिंग प्लेस है मुझे ये। लग रहा है कि ये इंटरवेंशन है, यहाँ पे बाथरूम हो नहीं सकता है नहीं क्योंकि नहीं, अगर नीचे यहाँ पे चूल्हा है, नीचे 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 वहाँ पे एक टेम्परेरी सा बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम बने हुए, तीन पल्स लगे हुए हैं वहाँ पर। हाँ जी, वो मैंने देखी है। अच्छा, ऊपर बड़ी हाँ, प्यारी। ये है नहीं, ये बाथरूम नहीं है, ये इंटरवेंशन है क्योंकि सीमेंट में और छोटा सा कमोड लगाया हुआ है, वो फ्लश लगाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, बड़ा जबरदस्त ऊपर अगर आप छत पे जाएं तो बड़ी प्यारी सिटिंग प्लेस बनी हुई है इसकी। प्लीज आराम से, सिटिंग प्लेसेस। दिखाते हैं मुझे पहले अब ये जरा इससे ज़्यादा यहाँ से। मट्टी थी, ये सिमटना शुरू हुई है, पूरा पूरा पैर आपका अंदर जा रहा है। ये इतनी अच्छा, ज़्यादा मट्टी थी क्योंकि खिड़कियाँ खुली हुई हैं और वो सालों की डस्ट है ये। सालों की है इसका। ये अभी यहाँ से समेटी है, रखी है यहाँ पे, ये सारी जगह साफ करवाई है। इसके अंदर भी बहुत मट्टी थी, वो अभी उसका अच्छा, कुछ बड़ा हिस्सा वहाँ पे प्यारा पड़ा एक हुआ है। पूरा फ्लोर है यहाँ पर। अगर आप प्रॉपर है। देखें तो एक पूरा फ्लोर है, और उसके अंदर भी पूरा ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट वाइट मार्बल, एंड और रेड, बड़े हाँ प्यारे जी। मोटिव्स भी बने हुए हैं नीचे इधर कुछ। मोटिव्स काफ़ी जगहों पे, एंट्रेंस पे है, जब आप हाँ अंदर बिल्कुल आते वो हैं सेम डबल बड़ा हाइट डिजाइन स्पेस जो पे। है। अच्छा, वही ग्रिल जो है पुरानी बिल्कुल वेल्डिंग के बगैर जो बाइंडिंग वाली जो हम्म बिल्कुल बाइंडिंग और आपस में। यही जो पैटर्न है अंदर, जब आप नीचे कुएं वाले कमरे में जाते हैं, उसकी जाली की लाइक सेफ्टी ग्रिल टाइप बना हुआ है, ये सेम पैटर्न यूज हो रहा है। यहाँ से पूरा अगर आप कह लें कि दर्शनी ड्यूटी इसीलिए कहा जाता है हम्म, कि यहाँ से खड़े होकर आप पूरे दर्शन कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. और आपको यहाँ से फ्लोर पैटर्न भी समझ आ रहा है कि वो किस तरह से डिस्टिंक्ट है। हाँ सामने से आप आ रहे हैं, उसका फ्लोर पैटर्न फर्क जी है बिल्कुल, जहाँ लेफ्ट और पर राइट माथा साइड का, टेकना है तो एग्जैक्टली बिल्कुल वो exactly. सामने से जो
properly. This is how you tell through architecture. ये वो चीज़ें हैं कि जब आप एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं ना प्रॉपरली, हाँ, जब आप चीज़ें डिज़ाइन करते हैं ना प्रॉपरली, तो बेसिकली यूर गाइडिंग पीपल थ्रू आर्किटेक्चर. ओके ये वन ऑफ द थिंग्स, मतलब आपने एंटर होना है, यहाँ आना है, ठीक है जी, ये डिफाइंड लाइन है, सारा कुछ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਓ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰੌਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ। ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਖੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੁੱਡ ਕਰਵਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਸਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿਓੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਓੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਟਰੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ टेक्निकली वो गाइड कर देने के मतलब जी। छत की जो सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो 4 टाइलें लगी हुई हैं, 3 टाइलें निकल गई हैं। जहाँ जहाँ से छत बैठी है वहाँ से सेटलमेंट ख़राब हुई है और ईंटें गिरना शुरू हो गई हैं। अगर आप उस तरफ देखते हैं तो उस कमरे की छत जो नीचे कमरा था सबसे खूबसूरत जिसमें बड़ी सी एक फायर प्लेस थी उसकी आधी छत टूटी हुई है और यहाँ से नीचे साइडों से डिफरेंट जगह से खप्पे निकले हुए हैं, डिफरेंट ईंटें। उसके अलावा अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो ये वो कोर्टयार्ड है जो 3 कमरों के दरमियान में था और इस कमरे की भी छत सारी गिरी हुई है। इसकी तो एक्सेसिबल भी नहीं है, वो इतनी ज़्यादा गिरी हुई है, लेकिन उससे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है कि ये लकड़ी के बालों वाली छत है। इसमें बीम नहीं डला हुआ, नीचे बीम डला हुआ है ना मेन प्रकाश हॉल में, इसमें लकड़ी का बीम डला हुआ है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन पूरी छत ही गिर गई है। पूरी छत नीचे स्टेबिलिटी सिर्फ स्टील की वजह से। ओके, बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ से। और ये बाहर वाले कोर्टयार्ड का व्यू है पूरा। कोर्टयार्ड का पूरा व्यू है और उसके साथ ही साथ अगर आप देखिए तो आपको बड़ा वो खूबसूरत किस्म का दरिया का पूरा व्यू बेसिकली बनाया ही पीछे इस वजह से है ना, कोर्टयार्ड के पीछे दरिया समझ आए। दरिया की वजह से पहले बिल्डिंग्स पानी के साथ सेटलमेंट होना शुरू होती थी ना आपकी, जहाँ पानी होता था वहाँ आबादी शुरू हो जाती थी। तो जब आप इस किस्म की कोई मूव करते हैं ना तो वो मेजरली यहाँ तो किसी व्यू की वजह से होती है, यहाँ पानी ऑब्वियसली पानी वाली सीनरी की वजह से। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये वाहिद गुरुद्वारा है जिसकी सीन साइनिंग जो है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म इतनी वाइड है कि बहुत ही खूबसूरत। आप देखें आज भी रिवर थोड़ा चौवा साहिब के भी आगे से पूरा बिल्कुल मतलब वो बेसिकली झेलम का ही पार्ट था ना, घन का जो नाला था, हाँ वो उसका ही पार्ट था। तो जितने भी रिवर के क्लोज है ना जगह उनके पास तो सीनरी लाइक कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये अभी तो खैर बहुत बुरी सिचुएशन है, अभी वी आर होपिंग कि गवर्नमेंट इसको जल्दी मूव कर देगी, वहाँ पे प्रॉपर नाला बनेगा, देन विल हैव लाइक अ क्लीन कोर्टयार्ड।
फिर कुछ समझ आया वो प्रॉपरली, अब ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आ रहा है डिस्ट्रक्टिव पार्ट, पूरी हाँ। दीवारें, उसकी नीशेस, उसकी फायर प्लेसेस, दीवार जो सारी छत टूटी हुई है, वो तीनों एक्सेसिबल ही नहीं है कमरे क्योंकि जी जी छत जी टूट गई हुई है। अच्छा, ये बड़ा प्यारा रूम है जिसके 4 डोर्स हैं ऊपर, ये चारों तरफ इसके चौथी चारों। एक्सेस नहीं है, हाँ जी, यहाँ तो वो टूट वो गई है ऊपर से विद है टाइम। जहाँ से वो दक्षिणी फिर जोड़ी वाला है, हम्म वहां से, लेकिन बड़े प्यारे, मतलब कि 4 उसके। नहीं नहीं, मैं उस एक्सेस की बात कर रही हूँ। ये ओके। 1 2 3 तरफ से है, पीछे भी उसके जा रहा है टेरेस सा, उस साइड पे नहीं है बालकनी कोई। ओके। या जब स्कूल ने इसको किया है ऑक्यूपाई जगह को, तो हो सकता है कि उन्होंने तोड़ दिया हो, अच्छा अच्छा। क्योंकि अंदर से दरवाजे तो 4 ही नज़र आ रहे हैं। 4 नजर आ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत नजर आ बिल्कुल रहे हैं, ऐसे बड़ा ही। यूनिक है कि एक ही कमरा और सिर्फ और एक ही 4 कमरे डोर हैं। है। ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने रात को अपने सोने के लिए दरिया के किनारे गर्मियों में, जैसे कि यहाँ पर फैन पॉसिबल है नहीं था, क्योंकि इसी के नीचे जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वो वो स्नान घाट को जाती स्नान थी, घाट हो स्नान जाती घाट को है। जाती थी। जहाँ जैसे कि पे कुंदन इंक्रोचमेंट घाट हुई और हुई है। चांदनी घाट 2 घाट थे इसके, सही हो गया। तो उसी की वजह से। थैंक यू जी, बहुत सही हो शुक्रिया गया। जी। रुबाब फातिमा चिश्ती सानू गाइड कर रहे सन कि उन्होंने की ऑब्जर्व किया। थैंक यू रुबाब, बहुत शुक्रिया जी।